आधे घंटे में पास की गई। प्लीज बैठिए, आप रहिए। इनको ज्ञान नहीं है, उस पर 9.5 घंटे तक डिबेट हुई थी। चलो बैठे, चलिए। ओके ओके, फ्रांसिस जॉर्ज। माननीय सदस्य, प्लीज सिट डाउन। फ्रांसिस जॉर्ज, बोलना है आपको? हाँ बोलिए। Sir, on behalf of the Kerala Congress Party, I join with the Honorable Prime Minister and the Honorable Opposition leader and all the other leaders in congratulating you on assuming this high post of Speaker of the Lok Sabha. In fact, you got re-elected. We are all happy about it. But, sir, we have a lot of issues to discuss in the coming days. The Honorable Prime Minister said the last 5 years under you was a golden period. In fact, I don't know what was golden about it. Suspending of members en masse and also passing of bills without discussion, can we call it golden? Sir, I think unfortunately that was not so. In fact, since due to the paucity of time, I am not flagging many issues. We have a lot of issues galore to discuss in the coming days. Sir, we have the farmers issue. Sir, let me complete, sir. Let me complete, sir. Sir, this is one point which I would like to tell you, sir, because there may be quite a few of one-member, two-member parties like us. Don't take a benign neglect attitude towards us. We should also get time to air our views. Because we represent the... मर्यादा बोलोगे तो बोलने देंगे, अब मर्यादित बोलने तो मौका नहीं देंगे। तो बालाशोरी, ऐसे नहीं चलेगा। चलिए बालाशोरी जी। Of my Janasena Party President, Sri Pawan Kalyan Garu, and my own behalf, I express my heartfelt congratulations and best wishes to you on your election as the Speaker of this prestigious House. Sir, I am confident. My party is confident. The House and 140 crore people of this country are confident that you will accomplish a great deal as Speaker of this House. Sir, this is my thought as member of this House. Sir, I am here because of my party leader, Sri Pawan Kalyan Garu. Sir, I sincerely thank and express my gratitude to him for giving me this opportunity. Sir, Pawan Kalyan Garu is a star in AP, and Honorable PM rightly said during the NDA meeting in the Central Hall of Samyadan Sadhan that a Pawan nahi on the high. This is true. He is a tufan in Andhra politics. Sir, Pawan Kalyan Garu has made a record in history of independent India. Sir, Janasena Party is the only party in the country since independence which has got 100% strike rate both in Lok Sabha and Assembly elections. Please. Sir, Janasena Party fought 21 Assembly and 2 Lok Sabha seats and won all 21 Assembly seats. Sir, Okay. Sir, Please. Okay, Rajesh Ranjan ji. अध्यक्ष जी, हृदय से ओके, माननीय सदस्य नहीं, आपका कोई रिकॉर्ड नहीं जा रहा। अध्यक्ष जी, राजेश रंजन जी, आप बोलना चाहते हैं? बोलिए। अध्यक्ष जी, हृदय की गहराइयों से बालाशोरी जी, प्लीज। अध्यक्ष जी, हृदय की गहराइयों से न्यायाधीश के सर्वोत्तम और सर्वश्रेष्ठ कुर्सी पे आपने जो गौरवपूर्ण और गरिमामयी जो आप आज पुनः दोबारा हम सबके गार्जियन के रूप में देश की स्वाभिमान, सम्मान और अभिमान की संविधान की स्वतंत्रता को बढ़ाए रखने के लिए जो आप हम सबके बीच दोबारा स्पीकर के रूप में आए हैं, हृदय की गहराइयों से मैं आपको बधाई देता हूं। मैं सिर्फ एक ही लाइन में कहूँगा, मैं स्वतंत्र आवाज़ हूँ इस देश के करोड़ों विचार के उस संरक्षण वाले हर समाज, वर्ग और समूह व्यवस्था का। मैं हमेशा अपेक्षा रखूँगा बिहार के साथ साथ संविधान और स्वतंत्र आवाज़ को आप संरक्षण देंगे। वैसे मैं सिर्फ एक लाइन कहूँगा कि मैं इस देश का निर्भीक, स्वतंत्र और
बिना भय में जीने वाला व्यक्ति हूं और मजबूत नेतृत्व के साथ यह जो समूह है, भैया सुन तो लीजिए, क्यों बोलते हैं, मजबूत नेता के रूप में स्वतंत्र, निष्पक्ष और सच्चाई के रास्ते पर इंडिया गठबंधन के विपक्ष के मजबूत नेता आदरणीय राहुल गांधी जी और सभी एनडीए घटक के नेताओं के भीतर इस देश के विपक्ष की आवाज सिर्फ उसकी लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए है। आप नैतिकता के मूल्यों के सर्वश्रेष्ठ कुर्सी पर विराजमान हैं। हमें उम्मीद है कि नैतिकता का मूल्यों का ह्रास नहीं होगा और आप सर्वश्रेष्ठ इस देश की संविधान की रक्षा करेंगे और हम सबको भी आप संरक्षण देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। राजकुमार रोथ। सर, पहले तो आपको इस पद पे शोभान्वित होने के लिए मेरी ओर से खूब खूब बधाई, लाख लाख जोहार। साथ ही मैं भारत आदिवासी पार्टी की तरफ से आता हूं, तो मेरी पार्टी और पूरे आदिवासी समुदाय, साथ ही मेरे निर्वाचन क्षेत्र के अंदर रहने वाले प्रत्येक वर्ग की तरफ से और विशेषकर राजस्थान की जनता काफ़ी खुश है, क्योंकि उनको उम्मीद थी कि राजस्थान को लोकसभा अध्यक्ष के रूप में, आपके रूप में देखना चाह रही थी दोबारा, और पूरे राजस्थान की जनता खुश है। और मैं उम्मीद करूंगा कि हमारी जो क्षेत्रीय पार्टी आई है और हम पहली बार इस सदन में आए हैं, मैं राजस्थान विधानसभा के सदस्य के रूप में था और उस दौरान मैंने आपको देखा था। उस समय विचार किया था कि कभी जरूर हम दिल्ली जाएंगे और आज ये अवसर मिला। मैं पुनः मेरी पार्टी, मेरे निर्वाचन क्षेत्र की जनता को धन्यवाद देना चाहूँगा। आपको पुनः मेरी पार्टी और हमारे गोविंद गुरु महाराज, संत रूमाल महाराज, मावजी महाराज के भक्तगणों द्वारा आप सबको, आपको पुनः बधाई, धन्यवाद, जोहार। धन्यवाद, धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी, केंद्रीय परिषद के माननीय सभी सदस्यगण, सभी दलों के नेतागण, सभी माननीय सदस्यगण, मुझे पुनः इस महान सदन के पीठासीन अधिकारी के रूप में दायित्व निर्वहन करने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और सभी दलों के नेताओं और माननीय संसद सदस्यों का, जिन्होंने मेरे प्रति विश्वास व्यक्त किया, उसके लिए भी मैं आपका आभारी हूं। ये 18वीं लोकसभा में दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र का उत्सव, और उत्सव में भौगोलिक विविधताएं, प्रतिकूल मौसम, अन्य चुनौतियों के बाद भी जिस सक्रियता से 64 करोड़ ज्यादा से मतदाताओं ने भाग लिया, मैं सदन की ओर से उनको और देश की जनता को के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं।